विशाखापट्टनम के ऊपर से क्रॉस कर रहा है और क्रॉस करने के समय हवा की गति 170 से 180 किलोमीटर, जो कि 195 किलोमीटर प्रति घंटा तक गश्त कर रही है। फिलहाल चूंकि चक्रवात की आंख शहर के ऊपर है, इसलिए वहां बारिश रुकी हुई है। 1 घंटे पश्चात जो बैकफ्लो, जब सेकेंड वॉल क्लाउड आएगा, तब दोबारा तेज हवाएं और बारिश देखी जाएगी। इसके प्रभाव से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के जिले, जिसमें कि श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी, ये सभी प्रभावित हैं। लेकिन ज्यादा प्रभाव, चूंकि ये विशाखापट्टनम से क्रॉस कर रहा है, वहीं पर है। जहां तक तटीय उड़ीसा का प्रश्न है, वहां हवाएं इतनी तेज नहीं है, लेकिन आगे चल करके दक्षिणी उड़ीसा जो है वो भारी बारिश वहां होगी और जो प्रभावित जिले होंगे वो मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, नबरंगपुर, कंधमाल और जो तट के 2 जिले हैं गंजाम और गजपति। मोटा मोटी ये जिले जहां की चक्रवात का प्रभाव रहेगा। चक्रवात 6 घंटे के पश्चात, अभी 1 बजे के 6 घंटे के पश्चात, यानी शाम तक काफी कमजोर हो जाएगा और इसकी जो हवा की गति है वो आधी हो जाएगी और उसके 6 घंटे बाद में फिर आधी हो जाएगी। लेकिन बारिश का दौर जारी रहेगा। बारिश 13, 14, 15 तारीख भी ये लो प्रेशर के रूप में उत्तर की तरफ बढ़ेगा। फिर पहले उत्तर पश्चिम में और फिर उत्तर में, तब भी इसके रास्ते में आने वाले राज्य, जिसमें कि झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये बंगाल के खास तौर से गांगेय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, इन सब में बारिश रहेगी। भारी से अधिक भारी बारिश भी जो है छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें कि कुछ एक स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की भी संभावना है। समुद्रिक जो सर्ज है वो करीब 1.5 मीटर, 1 से 2 मीटर, करीब 1.5 मीटर, 1 से 2 मीटर का जो तो अलग अलग तट पे एवरेज 1.5 मीटर है और ये अभी जारी रहेगा। The very severe cyclonic storm Hudhud is just crossing over the city of Visakhapatnam. So far, the maximum sustained wind which has been reported is ranging between 170 to 180 km per hour, gusting up to 195 km per hour. Heavy to very heavy rainfall is being reported along the coast. And presently, since I is crossing, there is not much of rainfall. But in an hour or so, the reverse wind flow will be experienced by the city, which will again have a very great damage potential. Under the influence of this very severe cyclone, the northern coastal districts of Andhra Pradesh, including Srikakulam, Vizianagaram, Visakhapatnam, East and West Godavari,
are bracing with the high wind speed and heavy to very heavy rainfall. As far as Odisha is concerned, the coast is not experiencing very high wind speed. The winds are of the order of about 60-70 kilometer per hour. But the southern districts of Odisha will get heavy to very heavy precipitation with pockets of extremely heavy precipitation in coming 24 hours and even 48 hours at some places. And the districts which will receive this kind of weather include Malkangiri, Koraput, Nabarangpur, Kalahandi, Raigada, Kandal and Fulbani. And this is besides the two coastal districts of Ganjam and Gajpati. The relief and rescue operations, because the aircraft and helicopter operations over the city of Visakhapatnam are very critical, and we are expecting that 13th morning the city the aircraft will be able to operate, because by that time wind speed will be lesser. However, from the cyclone after crossing the coast will lose its intensity very rapidly because it is a mountainous terrain. Within 6 hours it will become a cyclonic storm, losing the wind speed by about 50% and further lose another 50% in next 6 hours. By that time it will become depression. But as a low pressure, it will continue to move first northwestwardly direction and then will have a more northerly component. And in its course of movement in coming 3 days, that is 13th, 14th and 15th of October, it is likely to impact states like Jharkhand, Chhattisgarh, Telangana, including East Vidarbha, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Bihar, and Gangetic West Bengal. While in course of movement of this remnant of this cyclone will cause widespread rainfall activity over Chhattisgarh, East MP, and East UP, and fairly widespread rainfall over Bihar, Jharkhand, Gangetic West Bengal, and eastern parts of Vidarbha and Telangana. Heavy rainfall warning is also issued for few places over Chhattisgarh and Madhya Pradesh and eastern Uttar Pradesh, and isolated heavy to very heavy rainfall is also likely to occur over Bihar, Jharkhand and Telangana, besides the states of Odisha and Andhra Pradesh. That is it. सर अभी तक इसकी मैक्सिमम स्पीड विंड की क्या कैलकुलेट की गई है, मिनिमम कितनी है, और जो इसका इम्पैक्ट है कितने हफ्तों तक रहने वाला है, और किन किन स्टेट्स को ज्यादा इम्पैक्ट पहुंचाएगा, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अलावा? जहां तक विंड की बात है, जैसा मैंने कहा कि ये बहुत तीव्रता से घटेगी. अभी जो देखी गई है वो 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिंग अप टू 195 किलोमीटर प्रति घंटा, यही विशाखापट्टनम में देखी गई है. और जैसे जैसे आप केंद्र से दूर जाते हैं, दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण की तरफ हवा की गति और ये कम हो जाती है. और ये भी कहना चाहूंगा कि जो पूर्वानुमान था लगभग वैसा ही, चाहे वो समय हो लैंडफॉल का, चाहे स्थान हो, चाहे तीव्रता हो, तीन जो महत्वपूर्ण पैमाने हैं. और हमारे मॉडलर्स बैठे हैं, मॉडलर्स ने जिस तरह से मॉडल चलाए और जो हमारे फोरकास्टर्स ने जिस प्रकार बताया, लगभग कॉपी बुक स्टाइल में ये आया है. आपने बताया था 155 किलोमीटर. हाँ, शुरू में हमने पहले कहा था. सर वो टाइम के पहले आ गया 12 अभी क्रॉस कर रहा है, अभी क्रॉस कर रहा है. ये आधा घंटे आई भी जो है
ये 30 किलोमीटर का होता है। तो उसमें ये एरर ऑफ जजमेंट आप न माने और उसको उस तरह से ना देखें। और पहले हमने कहा था, लेकिन हमने एक रिवाइज जो एस्टिमेट दिया था वो 170 से 180 किलोमीटर गस्टिंग अप टू 195 किलोमीटर। स्टेट मॉनिटरिंग टीम का ये भी कहना है कि 205 किलोमीटर तक अभी तक इसकी गति नापी गई है और ये फ्लक्चुएट होकर 190 तक पहुंचा है। क्या इसमें इसके बारे में कोई डिटेल है? हमारे पास पुख्ता डिटेल है। हम ही नापते हैं और हमने जो नापा है 103 नॉट जो है वो नापा है, जो कमोबेश 103 नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1.85। आप गणित जानते हैं। उड़ीसा बहुत बड़ा राज्य है और कहीं विंड स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, कहीं 100 किलोमीटर 60-70 होगा गंजामगंज पर। एक सवाल इधर से, जो एक्सपेक्टेड सीट उड़ीसा की बात करें, बाकी एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट बारिश से कौन सी नजर आएगा? जी, मानसून के तौर पर फायदेमंद होगा, क्या चीज होगा बारिश की फसल लगी है? चूंकि ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। फसल अभी अक्टूबर का दूसरा सप्ताहांत आ गया है और फसलें पकने की अवस्था में है। इसलिए जिन राज्यों में ये बारिश होगी वो लगभग नुकसान अधिक करेगी। सभी राज्य सरकारों को और सभी कृषि मौसम इकाइयों के द्वारा ये प्रचालित किया गया है कि जो कुछ अब आप इससे बचाव कर सकें करें, नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम। आप ही के माध्यम से कर रहे हैं। बाकी राज्य सरकारों को, चीफ सेक्रेटरीज को, सबको बता दिया है कि ये इस तरह से 13, 14, 15 को बारिश होगी। अलग से एक बुलेटिन, हालांकि अभी चक्रवात का एक बुलेटिन होता है और फोरकास्ट का एक बुलेटिन होता है, लेकिन हम कॉन्करेंटली ये एहतियात रखने के लिए, ताकि उनको एक समय ज्यादा दे पाए, ये कल हमने एक बुलेटिन जारी कर दिया था। देखिए, नुकसान का आकलन हम नहीं करते हैं और सीवियरिटी का जो हवा से और बारिश से संबंध तो है, लेकिन वो ज्यादा इस पर निर्भर करता है कि वल्नरेबिलिटी क्या है। तो ये वल्नरेबिलिटी का इश्यू है, तो ये तो आंकड़े आएंगे तब पता लगेगा। सर, इन दो स्टेट्स के अलावा और किस स्टेट्स पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा इसका? जैसे अभी वार्निंग सिचुएशन है खासतौर पे एपी और उड़ीसा में, तो क्या इसके अलावा जो मूव करेगा ये, तो वहां पे भी ऐसा इम्पैक्ट रहेगा या इम्पैक्ट कम होगा या बारिश के रूप में इम्पैक्ट? देखिए, अब जो इम्पैक्ट आगे के राज्यों में होगा वो बारिश के रूप में ज्यादा होगा, जिसमें कि छत्तीसगढ़ और झारखंड और जो मैंने 3 बताए जहां की, और आगे चल के इवन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी, क्योंकि अनसीजनल रेन जब हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट उस दृष्टिकोण से, चाहे बारिश 6 सेंटीमीटर ही हो, लेकिन अगर अनसीजनल है तो उसका इम्पैक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।